The topic is angles of elevation and depression. Okay, so we are talking about the angles, and there is a difference between two angles, which is elevation and depression. When you see an object above you, okay, suppose this is an object, okay, and this is you. If you are looking at that object, this is called line of sight. Line of sight fall perpendicular from this object to the horizontal line. Okay, so this is line of sight and there is angle. Okay? That is the angle which is called angle of elevation, because you are looking up. Okay, this is horizontal line. Whenever horizontal line, whenever your line of sight is above the horizontal line, this angle is called angle of elevation. You can see over here, this is the object, this is you, this is horizontal line, and your line of sight is above horizontal line. Then this angle is called angle of elevation, and you will make this angle like this. Okay, so let's go towards angle of depression. Similarly, when you see an object below you, there is an angle of depression between the horizontal and your line of sight to the object. ठीक है, so this is angle of depression. So there are you and this is the object, and you are looking below to the horizontal line. This is horizontal line. Here you can see this is horizontal line, and this is object which is below the horizontal line, and you are looking from here. So this line is called sight line or line of sight, and the angle is angle of depression. Now we are going to solve MCQs. What is the angle of elevation from A to S? If I am talking about angle of elevation, that would be, this is the line of sight, here the object, and here I am looking up like this, okay, from here. And what it would be the angle of elevation? That would be angle of elevation is this angle. So that would be the correct option. If we have two parallel lines, okay, and a transversal cuts these two parallel lines, this angle would be equal to this angle, okay, और ये वाला जो आपके पास एंगल होगा that would be equal to this angle. Everybody knows this thing. ठीक है, तो पहले हम ये वाले दो एंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इक्वल है. लेट मी रिमूव इट. तो हम इन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं. अगर मैं कहूं कि मेरा ऑब्जर्वर जो है, यानी मैं यहां मौजूद हूं, ठीक है, और मैं जो हूं ये पॉइंट P है जिसको मैं देख रही हूं, ठीक है, आई एम द ऑब्जर्वर एंड दिस इज पॉइंट P. अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करूंगी तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, दैट वुड बी द एंगल ऑफ एलिवेशन. ये वाला जो पार्ट है यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, दैट वुड बी एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, यहां बताने का मकसद ये है कि चूंकि ये दोनों एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल वुड बी इक्वल, ठीक है, तो चाहे हम अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर हम यहाँ से ऑब्जर्वर लेके यहाँ पर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर ऑब्जर्वर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ ऑब्जर्वर आ जाता है और यहाँ आपका पॉइंट आ जाता है, फिर इस सूरत हाल में क्या क्या होगा कि यहाँ आपका ऑब्जर्वर है और जब वो नीचे की तरफ देखेगा, यहाँ अगर मैं आई बना दूं और आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो दैट वुड बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट वुड बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप कहां से कहां देख रहे हो, यहां ऑब्जर्वर आ गया है और यहां आपका पॉइंट आ गया है, दैट वुड बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. और दोनों सूरत हाल में, चाहे आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ, यहां आपकी आय है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ देखें, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ, दीज टू एंगल्स वुड बी सेम. ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा. बट इन बोथ केसेस एंगल्स वुड बी सेम. सपोज दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री. अगर मैं इस एंगल को कहती हूँ कि ये 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन, आप नीचे से ऊपर की तरफ पॉइंट P की तरफ देख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तब भी ये एंगल
30 डिग्री का ही होगा। ओके, अगर मैं अब दोबारा से ये मैं दो लाइंस बनाती हूँ, टू लाइंस पैरेलल लाइंस, और ये एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, तो यहां से अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा कि दीज टू एंगल्स वुड बी इक्वल, ठीक है। और अगर मैं यहां से ट्राइंगल कंप्लीट कर देती हूँ, यहां से मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर देती हूं, दिस इज बेस ऑफ द ट्राइंगल, ओके, दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल। लाइकवाइज ये परपेंडिकुलर जो है वो यहां पर, अगर मैं ये दो लाइंस हों तो ये दो लाइंस आपस में इक्वल होंगी और ये दो लाइंस आपस में इक्वल होंगी, तो मैं ये जो नीचे बेस है यही इक्वल होगा ऊपर, दैट वुड बी ऑल्सो द सेम एज द बेस दिस। ओके, ये जो लाइंस हैं यानी ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी और दिस लाइन वुड बी इक्वल टू दिस लाइन। ओके, तो ये चीज दिमाग में रखें, चाहे इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लें चाहे इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लें, योर आंसर्स वुड बी सेम, ठीक है। पी भी इक्वल आएगा, बी भी इक्वल आएगा एंड द एंगल्स वुड आल्सो बी इक्वल। यू कैन सी हियर एग्जांपल नंबर 1, a flagpole 17.9 meter high, there is a flagpole which is 17.9 meter high। ये आपके पास जो है वो flagpole बना हुआ है, ठीक है। this is the flagpole, let me make it over here, this is a flagpole, ठीक है। and this is 17.9 meters high, casts a 7 meter shadow, जो इसका shadow cast हो रहा है वो 7 meters है। ओके, ये आपका जो है वो शेडो बन रहा है, यकीनन सन जो है वो आपका यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ होगा, इधर आपका सन होगा तभी शेडो जो है वो इधर कास्ट होगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है। यहां से अगर कोई बंदा जो है, अगर मैं यहाँ पर सन जो है वो बना दूं, ठीक है, यहां से मैं लाइन ड्रॉ करती हूं फर्स्ट, दिस इज पोल, यकीनन इधर कहीं सन होगा, ठीक है। और यहां अगर मैं ये लाइन आगे ड्रॉ करूं, दैट वुड बी हियर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे यहां पर मालूम करना है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे हम इसको बना देंगे, दिस इज बी सी एंड ए। ओके, अच्छा, अगर यहां पर आप देखें तो अगर मैं सन से, अगर मैं सन की जगह पे खड़ी हुई भी हूं, ओके, इसको समझिएगा जरा, अगर मैं सन की जगह पे खड़ी हुई भी हूं तो दैट वुड बी द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्सल आ गई है, समझने के लिए आप इसको गौर से देख लीजिए, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं यहां से देख रही हूं तो यहां सूरज से अगर मैं खड़े होकर देख रही हूं, सपोज मेरा ऑब्जर्वर जो है, मैं ऑब्जर्वर, सूरज जो है वो ऑब्जर्वर है, या मैं यहां पर ऑब्जर्वर हूं, सपोज ओ यहां पर है, तो ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। मैं यहां से देख रही हूं कौन से वाले पॉइंट को, पॉइंट बी को देख रही हूं, ओके, पॉइंट बी को देख रही हूं, तो मेरा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और अगर मैं बी पे खड़े होकर और ए की तरफ देख रही हूं, मींस मैं ऑब्जर्वर इधर हूं, बी से खड़े होकर ए की तरफ देख रही हूं, तो दैट वुड बी माय एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो चाहे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन लें चाहे आप एंगल ऑफ एलिवेशन लें, बोथ आर सेम, ठीक है। 17.9 अगर आपके पास मीटर्स इधर है तो दैट वुड ऑल्सो बी 17.9, तो अगर आपके पास ये 17.9 मीटर्स है तो दैट वुड ऑल्सो बी 17.9 मीटर्स, ओके। ये 7 मीटर्स है तो दैट वुड ऑल्सो बी 7 मीटर्स। अब इधर यू विल सॉल्व दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, बोथ वुड बी सेम, द आंसर्स वुड बी सेम, ठीक है। तो इसमें हम मालूम करने के लिए क्या जा रहे हैं, एंगल मालूम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां हमारे पास परपेंडिकुलर, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करूं, दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जैसे यहां ये ली हुई है ट्राइंगल, और यहां आपका एंगल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज 17.9 मीटर्स एंड दिस इज 7 मीटर्स। आपके पास परपेंडिकुलर इज गिवन, ठीक है, AC इज द परपेंडिकुलर एंड BC आपका जो बेस है इट इज गिवन, एंड एज यू नो दैट टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा, थीटा इसको हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल इज थीटा। हाउ वुड आई फाइंड आउट, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम रिलेशन लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज टेंजेंट थीटा, ठीक है,
यहाँ आपकी बुक में इन्होंने अल्फा लिया हुआ है, आपकी मर्जी है, आप टेंजेंट थीटा भी ले सकते हैं एंगल को, बिकॉज दिस इज एन अननोन और वेरिएबल. थीटा इज अ वेरिएबल. वट एवर यू कैन टेक, अल्फा ले लें, बेटा ले लें और थीटा ले लें, ऑल वुड बी सेम. ठीक है, गैमा ले लें, सिग्मा ले लें. ठीक है, तो ये इसका जस्ट दिस इज अ नेम. तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी. ओके, जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, ए सी अपॉन बी सी 17.9 and this is 7, and when you will solve it your answer would be 2.55714 when you divide 17.9 by 7. ठीक है जी. सॉल्विंग फॉर अल्फा गिव्स अस, जब हम इसको एंगल के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ क्या आंसर आया 2.55714. और जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना चाहेंगे तो दैट वुड बी, हम टेंजेंट को उधर लेकर जाएंगे, दैट वुड बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2.55714. ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट इट वुड बी, you will use your calculator for this purpose, and that would be is equal to 68.666. okay, and you know how to solve it. ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 68 डिग्री एंड 40 मिनट्स. ठीक है जी, तो यहाँ आपके पास जो है ये थीटा की वैल्यू आ गई है विच इज ओवर हियर. नाउ लेट्स गो अहेड. Example number 2, an observation balloon is 4280 meters, means 4280 meters above the ground. 4280 meters एक ऑब्जर्वेशन बलून है. यहाँ हम इसको ड्रॉ कर भी करते जाते हैं साथ साथ खुद भी, ताकि आपको समझ आता जाए. बलून कहाँ पर मौजूद है, 4280 meters from the ground. यहाँ ग्राउंड से ये इतना ऊंचा है. ठीक है, एंड 9613, असल में हमें फिगर भी खुद ही बनानी होगी, ये हमें बनी हुई नहीं मिलेगी. ठीक है, 9613 meters away from a farmhouse. Suppose there is a farmhouse. Okay, you will make a farmhouse here as it is there in your सॉल्यूशन. ठीक है, ये आपने फार्म हाउस ड्रॉ कर लिया है और इससे ये कितने डिस्टेंस पर है, दिस इज 9613 मीटर्स. इस तरह आप फिगर को ड्रॉ करते चले जाएंगे. ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ डिप्रेशन. हमें एलिवेशन नहीं निकालना है, डिप्रेशन निकालना है. फार्म हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन बलून. अब ये ऑब्जर्वेशन बलून जो है वो असल में आपका ऑब्जर्वर है. ठीक है, this is the observer. I will draw a line from here to there. ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है. इसको इन्होंने A कह दिया है, इसको इन्होंने B कह दिया है और इसको इन्होंने C कह दिया. ऑब्जर्वर का मतलब है O जो है, ऑब्जर्वर जो है, यानी जो आपकी जो देखने वाला है वो यहाँ मौजूद है. ओके, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, विच वुड बी पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, और ये अगर आप इसको देखें तो दिस इज योर ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो ये जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट वुड बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, अब इसको समझिएगा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल एक्सिस ले, ट्रांसवर्सल लाइन ले लूं, दिस लाइन को, दिस लाइन वुड बी ट्रांसवर्सल लाइन. तो यहाँ आपका जो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा. ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखें तो अगर ऊपर ट्राइंगल बनाते हैं तो ऊपर बना सकते हैं. ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ से बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वहां बन रहा है, बोथ वुड बी सेम. और यहाँ अगर आप देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है. सो दिस इज द परपेंडिकुलर. ओके, एंड दिस इज द बेस. लेट मी राइट ओवर हियर. ठीक है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, और मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, मींस ये वाला एंगल निकालना है. लेकिन मैंने आपको बताया कि दिस एंगल एंड दिस एंगल वुड बी सेम. तो चाहे मैं ये एंगल निकालूं, ये एंगल निकालूं, वुड बी सेम. इसलिए कि यहाँ जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल जिसको कट कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट
थीटा. ओके, अगेन टेंजेंट थीटा. एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यही यूज हो रहा है. परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? दिस इज AC अपॉन BC. ओके, now put the values. This is perpendicular is 4280 and BC is your 9613, which would be equal to 0.44523. आप यहाँ देख रहे हैं कि डेसिमल्स इन्होंने डेसिमल प्लेसेस ज्यादा से ज्यादा लिए हैं, यानी 5 डेसिमल प्लेसेस लिए हुए हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी ऑफ द आंसर बढ़ जाए. ठीक है, तो आपके पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0.44523 आपके पास आ गया है. नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट थीटा. So that would be tangent inverse 0.44523 बन जाएगा. और जब आप इसका tangent inverse निकालेंगे तो that would be equal to, by using your calculator, 24 degree. This is your angle of depression. बज़ाहिर तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला है, लेकिन असल में चूंकि कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर है, सो दैट वुड बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये यहाँ लिख दिया. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 24 डिग्री. ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज विच इज हियर. यहाँ आपने फिगर जो है वो खुद ड्रॉ करनी होगी. ओके, नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 1. Let me read the question. Find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man casts a 3 feet shadow. ये अभी जो हम ऊपर करके आए हैं जिसमें हमारे पास पोल मौजूद था, सन वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, सेम वैसे ही ये भी जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है जी, तो लेट मी मेक द फिगर फर्स्ट. सपोज दिस इज अ मैन. ओके, दिस इज अ मैन, और यहाँ जो है वो इसकी जो ये हाइट है, ठीक है, जो ये शेडो को कास्ट कर रहा है, दिस इज 3.5 फीट. यहाँ हम लिख देते हैं 3.5 फीट. ओके, दिस इज द शेडो. और अगर आप देखें तो सन जो है वो यहाँ मौजूद होगा यकीनन. दिस इज सन एंड दिस इज ए. ओके, एंड यहाँ जो है देखा जाए तो या तो आपको सन को ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा और या फिर इस पॉइंट को ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा, बी पॉइंट. ठीक है, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज द लाइन, ये यहाँ चली गई है. और जो यहाँ जो एक जो आदमी खड़ा हुआ है, इसकी जो हाइट है वो 6 फीट है. ओके, 6 फीट. दैट वुड बी एंगल ऑफ, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, this is angle of elevation which is theta. We are going to find out. तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास फिगर आ गई है. ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. ओके, सो आई विल यूज tangent theta because P and B are here. P upon B. Okay, P is A B C. I can write it over here. ठीक है, यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है और थीटा आपको फाइंड आउट करना है. तो दैट इज AC अपॉन BC. ओके, एंड AC इज 6 एंड BC इज 3.5 एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डाटा बना लूँ तो दैट वुड बी रादर बेटर. ट्राइंगल ABC. ओके, height of man, first of all I will write here height of man is equal to MAC is equal to 6 feet, and then length of shadow is equal to BC is equal to 3.5 feet. Okay, 3.5 feet. And angle of elevation we are going to find out. This is theta is equal to question mark. Okay, यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या कहेंगे? You will write here using the trigonometric function. So that would be equal to tangent
theta is equal to 6.3.5. We will divide this 6 by 3.5. That would be 1.7142. Why that much decimal places? Because we are going towards the accuracy. Okay, तो एंगल निकालने के लिए हमें एक्यूरेसी चाहिए. दैट्स वाई वी आर टेकिंग 4 और 5 डेसिमल. वी कैन टेक 4 और 5 डेसिमल प्लेसेस. ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1.7142. दैट वुड बी इक्वल टू 59.7436. 59.7436 by your calculator. Okay, so now this is 59 degree 44 minutes and 37 seconds. Okay, this is the value of theta. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. सो व्हाट इज दिस? अ ट्री casts a 40-meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25 degree. Here you can see that theta is given to you. ठीक है, theta आपको दे दिया गया है. Find the height of the tree. आपको height जो है means perpendicular you need to find out, and a tree casts a 40-meter shadow. तो 40 मीटर शेडो जो है ये आपका बेस हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास बी मौजूद है और आपके पास जो है वो एंगल मौजूद है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर. ओके, तो अगर हम इसको स्टार्ट लेंगे तो पहले तो हम इसकी फिगर बनाएंगे. हाउ वुड वी मेक द फिगर? यहाँ आपके पास एक ट्री है. ओके, सपोज दिस इज अ ट्री, एंड यहाँ आपके पास सन है. ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो है वो इसका शेडो जो कास्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट इज द length of shadow. This is 40 meters, and angle of elevation, this is 25 degree. Okay, and you need to find out the height of the tree. Okay, आपको यहाँ से ये height जो है ये find out करनी है. Okay, so let's get started. From, if I will make a triangle, that would be, okay, from triangle ABC, height of tree we need to find out. And the length of shadow is equal to BC equals 40 meters, and angle of elevation equals theta, which is 25 degree. Okay, so here perpendicular is not given, base is given, and the angle is given. So PB means we are going to use the fact using the trigonometric function. What is this? Tangent theta, because you have been given values of b and theta, and you are going to find out the value of p. तो जब आपके पास p, b और theta होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं. ओके, सो दैट वुड बी p अपॉन b, which is AC upon BC. Okay, and you will put tangent. What is this theta? This is 25 degree, and your AC is you are going to find out. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी AC upon what is BC? BC is 40. Okay, AC, the value of AC is equal to 40 multiplied by tangent 25 degree. Okay, now you will find out the value of tangent 25 degree. You will multiply it by 40, and your answer would be 18.65
meters. यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो आपकी आई है 18.65 meters, which is the perpendicular. Now we are going towards next question, which is question number 3. A 20 feet long ladder, a ladder is of 20 feet, is leaning against a wall. यानी एक वॉल के साथ जो है वो लीन किया हुआ है उसने. The bottom of the ladder is 5 feet from the base of the wall. ठीक है, हम फिगर बनाते जाते हैं. This is question number 3. So this is a wall, suppose. This is a wall, okay, and this is the ladder. Okay, this is the ladder, and it's written 20 feet long ladder. The length of the ladder is 20 feet, okay, and the bottom of the ladder is 5 feet, means this length. ये जो bottom of the ladder है ये wall से कितने distance के ऊपर है? 5 feet, okay, this is 5 feet, and we need to find out angle of elevation. Okay, the base, this is from the wall, find the acute angle of elevation the ladder makes with the ground. Okay, so here you can see that hypotenuse is given. This is hypotenuse, this is base is given. You need to find out this angle. अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज जब गिवन होता है, एंगल बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो आप कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, ये आपका रफ वर्क है. आपके पास जो फॉर्मूला बनता है B/H. ठीक है, ये 3 आपके पास वेरिएबल्स हैं. इसमें आपको 2 की वैल्यूज पता हो तो आप तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है. B और H आपको गिवन है एंड यू विल फाइंड आउट योर थीटा बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड प्रॉपरली द क्वेश्चन. फ्रॉम ट्रायंगल ABC, length of ladder is equal to 20 feet, okay, and distance of ladder from wall is equal to BC equals 5 feet, okay, and angle of elevation you are going to find out using the fact cos theta. ये आपको खुद कॉम्प्रिहेंड करना होगा कि कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहाँ यूज किया जा सकता है. एंड फॉर दिस पर्पस यू नीड टू गेट बाय हार्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूलाए. ओके, तो ये आपके पास आ गया है B/H BC upon AB, okay, and that is cos theta equals 5 feet upon 20 feet. That would be 0.25 feet. And cos of theta, we are going to find out the value of theta, which would be equal to cos inverse 0.25, and that would be equal to 75.5225. Let's get started. Question number 4. So let me read it first. The base of a rectangle is 25 feet. Base is 25 feet and the height of the rectangle is 13 feet. Find the angle that the diagonal of the rectangle makes with the base. Okay, so let me make this figure. Question number 4. I am going to make a rectangle
which is being asked in the question, which is the demand of the question. This is the diagonal. Okay, this is A, B, C, D. This is perpendicular as to make it a right angle triangle, 13 feet, and this is 25 feet, and this is angle with the base. Okay, this is angle with the base, like this, positive angle. ठीक है जी, तो इसको अगर हम लेके चलें तो कौन सी वाली ट्राइंगल लेके चलेंगे हम? ये वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC. फ्रॉम triangle ABC, base is equal to AB is equal to 25 feet. Perpendicular, height of the rectangle would be the perpendicular. तो यहाँ मैं height लिख देती हूँ. This is height is equal to BC equals 13 feet. And we need to find out angle between height and base equal theta, which we are going to find out. Okay, now using the trigonometric function tangent theta. Why tangent theta? Because P and B are given over here. ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा. This is P upon B is equal to BC upon AB. Okay, and that is 13 upon 25. ठीक है, थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो that would be is equal to tangent inverse of 13 upon 25. ठीक है, 13 upon 25, इसको डिवाइड करके जब इसके ऊपर टेंजेंट को अप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 27.4744. 27.4744 degree, which would be equal to 27.47 degree. Okay, now we are going towards question number 5. A rocket is launched and climbs at a constant angle of 80 degree. एक rocket है. Let me make a rocket over here. I am not very good at art. So this is the figure. ये एक rocket जो है वो launch किया गया है. ठीक है, ये launch किया गया है. यही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है. Rocket is launched and climbs at a constant angle of 80 degree. एंगल जो वो बना रहा है वो 80 डिग्री का बना रहा है. ओके, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन. फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर्स. 5000 मीटर्स, ये यहाँ इसका जो आपका ये लाइन होगी ये 5000 मीटर्स होगी. ओके, और आपको एल्टीट्यूड मीन्स हाइट निकालनी है, कितनी हाइट पे वो पहुंचता है, परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द सी लेवल. ओके, तो ये आपके पास बी, सी एंड ए है. ठीक है, और नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फ्रॉम द फिगर. ट्राइंगल ABC, distance traveled by rocket is equal to AB is equal to 5000 meters. तो यहाँ अगर आप देखें तो फॉर्मूला क्या बनता है जब आपको थीटा दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H. ओके, तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा यूज करेंगे. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया है आपका. यू नीड टू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड. ठीक है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू MAC, मेजर लाइन AC, यू नीड टू फाइंड आउट. एंड आपका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा जो है वो आपको दिया गया है 80 डिग्री. ठीक है, अब आप यहाँ पर यूज कर लेंगे तो आपके पास क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन AC अपॉन
AB, that would be equal to AC की वैल्यू क्या है आपके पास, इट्स नॉट गिवन, AC आपके पास गिवन नहीं है जो एल्टीट्यूड है, साइन 80 डिग्री is equal to AC is not given upon AB is 5000. After solving it, that would be AC is equal to 5000 multiplied by sine of 80 degree. Okay, we need to find out the value of sine 80 degree and we will multiply it by 5000 and the answer would be 4924.04 meters. Okay, बात मीटर्स में हो रही है तो हमारा आंसर भी मीटर्स में आएगा. तो so the altitude of rocket is 4924.04 meters. You will write your answer in statement. Okay, you will give the statement of answer over here. Now question number 6, let me read it. An aeroplane pilot flying at an altitude of 4000 meters. Okay, 4000 meters के ऊपर जो है वो एरोप्लेन जो है वो उसका जो पायलट है वो उसको फ्लाई कर रहा है. wishes to make an approach to an airport at an angle of 50 degree. ठीक है, with the horizontal के साथ वो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है. इट मीन्स दैट वुड बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा. हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड. जब वो नीचे आना शुरू होता है, डिसेंड मीन्स नीचे की तरफ उसकी जो परवाज स्टार्ट होती है. आई विल मेक इट लाइक दिस. सपोज दिस इज द प्लेन. ओके, दिस इज द प्लेन. ओके, तो अब यहां से ये नीचे आना शुरू कर रहा है. ठीक है, तो जब ये नीचे की तरफ परवाज स्टार्ट करेगा तो इसको कुछ इस तरह हम बनाएंगे. जहां से वो स्टार्ट करता है डिसेंड होना, डिसेंड का मतलब है वो यहां से नीचे की तरफ उतरना शुरू कर रहा है. ठीक है, दिस इज योर एयरपोर्ट. ओके, एंड आई विल शो इट बाय बी एंड दिस इज द एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, जो आपकी हाइट है, प्लेन की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 4000 मीटर्स है. ओके, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. ओके, हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड. तो यहाँ से लेके असल में वो ये वाली जो वैल्यू है वो निकाली जाएगी. ठीक है, यहाँ से देखें तो ये इस तरह ये इतना डिस्टेंस बन रहा है. ठीक है, यानी यहाँ से अगर वो डिसेंड करना शुरू कर रहा है प्लेन, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो डिस्टेंस वो कवर करेगा एयरपोर्ट तक जहाँ से उसने डिसेंड करना शुरू किया था, तो दैट वुड बी दैट डिस्टेंस. ओके, और ये डिस्टेंस आप अच्छी तरह जानते हैं कि बराबर होगा. ठीक है, तो दिस इज बेस इज नॉट गिवन, परपेंडिकुलर इज गिवन. ओके, एंड द एंगल इज 50 डिग्री. अच्छा, ये जो 50 डिग्री है वो असल में ये एंगल बता रहे हैं. ठीक है, ये एंगल कितने का है, ये है 50 डिग्री एंगल. और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये दो पैरेलल लाइंस अगर आप ले लें और ये एक ट्रांसवर्सल हो तो ऑल्टरनेट एंगल, इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या बनेगा, दैट वुड बी द ऑल्टरनेट एंगल ऑफ दिस एंगल. ठीक है, तो यहाँ ये ट्राइंगल जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है. ओके, तो यहाँ थीटा की वैल्यू जो है वो हम 50 डिग्री ले लेंगे. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. From triangle, this is BC, this is ABC. Okay, altitude is equal to AC is equal to 4000 meters and the distance from airport, that is BC, we are going to find out, and angle of depression which is given, it is theta is equal to 50 degree. Okay, ये वही 50 डिग्री है जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया है. ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल. नाउ यहाँ अब हम अगर देखें तो आप
जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होगा, इसलिए कि पी और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेंजेंट थीटा इक्वल्स ए सी अपॉन बी सी, ओके। दैट इज AC is 4000 meters and BC we are going to find out, and your theta is tangent theta is 50 degree and this is 4000 and the value of BC I'm going to find out, okay. So that would be BC equals 4000 upon tangent 50 degree will go in the denominator. We will find out the value of this tangent 50 degree and I will put it over here. Divide 4000 by the value of tangent 50 degree, that is 3356.4 meters, and so the distance of aeroplane from airport is 3356.4 meters. It is your answer. Now we are going towards question number 7. A guy wire means supporting wire runs from the middle of a utility pole. First of all, I will make a pole over there and a wire from here. It is tied from the middle of a utility pole to the ground. Means यहाँ से ये यहाँ के ऊपर जो है ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, ठीक है, जुड़ा हुआ है. The wire makes an angle of 78.2 degree with the ground. 78.2 degree with the ground and touches the ground 3 meters from the base of the pole. So that would be 3 meters. Okay. अच्छा, middle का मतलब है this distance would be equal to this. This length would be equal to this length. Okay. ये दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है. तो हम इसको लिखेंगे A, B, C and D. ओके. तो आप यहाँ दिखा देंगे कि AD इक्वल है AC के. ओके. मेजर लाइन AD इक्वल्स मेजर लाइन AC. अच्छा, अब हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है? The wire makes an angle of this with the ground and touches the from the base of the pole. Find the height of the pole. We need to find out this portion. Okay, this portion, the total height of the pole. ठीक है. तो अब स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम यहाँ इस ट्राइंगल से ये वाली वैल्यू मालूम कर लेंगे, दिस वैल्यू AC मालूम कर लेंगे यहाँ से हम, और जब हम AC को डबल करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आपकी हाइट ऑफ द पोल है वो आपके पास आ जाएगी. ठीक है. हाइट ऑफ द पोल इज CD, which we are going to find out. Distance of wire from the base of the pole is equal to BC is equal to 3 meters. Okay. And angle of elevation is equal to 78.2 degree. Okay. And first of all we need to find out value of AC. ठीक है. ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पहले हमें निकालनी होगी, तो ये हमें पहले फाइंड आउट करना है. एंड बाय डबलिंग इट, अगर इसकी वैल्यू को हम डबल कर देंगे तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ CD. ओके, द फुल हाइट ऑफ द पोल. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और थीटा हमारे पास गिवन है. ठीक है. तो फॉर्मूला हमारे पास जो लगेगा वो टेंजेंट थीटा का लगेगा, एंड दिस इज AC अपॉन BC, एंड आई विल पुट द वैल्यूज. टेंजेंट थीटा इज 78.2 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई है. And AC, we are going to find out the value of AC.
and BC is 3. So we will multiply, that would be AC equals 3 multiplied by tangent 78.2 degree. By using your calculator, the value of tangent 78.2 you will find out, and then multiply it by 3, that would be 14.36 meters. ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई है AC की, ठीक है. Now what will we do? Height of pole. Height of pole can be found out as 2 multiplied by AC is equal to 2 multiplied by 14.36 meters, which is equal to 28.72 meters. This is the total height of the pole. Question number 8 is, a road is inclined at an angle of 5.7 degree. ठीक है, एक रोड है जो inclined है. ओके, inclined means steepness है उसके अंदर, और कितनी डिग्री की steepness है? This is 5.7 degree. Okay, this is road. So let me write it over here. This is a road, and a road is inclined at an angle 5.7 degree. Suppose that we drive 2 miles up this road, starting from sea level. This is sea level. Okay, sea level, और आपने यहाँ से start किया है और 2 miles आप गए हैं उसके ऊपर. ठीक है, अच्छा जी, हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी? हमको ये वाला जो पोर्शन है ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है. देयर इज 90 डिग्री एंगल. लेट्स गेट स्टार्टेड द क्वेश्चन. यहाँ देखिए, ये पी की वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मौजूद है और थीटा की वैल्यू मौजूद है. मीन्स पी, एच एंड थीटा. तो जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो है आपके पास ए बी, विच इज इक्वल टू 2 miles. ओके, 2 miles, ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है. ओके, और आपके पास जो है वो यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट. ओके, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, विच इज AC, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है आपके पास, ये एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिख लेते हैं. इंक्लिनेशन इज थीटा इज इक्वल टू 5.7 डिग्री. ओके, ये लिखा है ना, इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन हमने यहाँ पे लिखा. ठीक है, 5.7 डिग्री आ गया है. अब हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB. ओके, एंड नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. साइन 5.7 डिग्री, एंड लेट मी राइट इट लाइक दिस. आप ब्रैकेट इसके ऊपर नहीं बनाते हैं, कीप इट इन योर माइंड. ठीक है, डायरेक्ट साइन 5.7 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन 2. वैल्यूज पुट करती हैं, और वी आर इंटरेस्टेड इन मेजर लाइन सेगमेंट AC. तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 multiplied by, and after taking out the value from the calculator, sin 5.7 degree and multiplying it by 2, we will get 0.199 mile. Okay, this is AC. Means this is the height of that road, this corner from the sea level. Okay, and let me write the answer. We are at the height of, we are at the height of 0.199 mile. Now this is question number 9, and here
a television antenna of 8 feet. We are talking about a television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. There is a house. Let me make over here. This is a house, suppose, and okay, and there is an antenna on the top of this house, okay, and from a point on the ground, the angle of elevation to the top of the house is 17 degree. I will be taking a point on the ground and top of the house. This is the roof of the house, and this is an angle which is called angle of elevation, okay, from this point. Okay, now this point is the observer and this is the object. तो यहाँ से यहाँ जब हम इसको बनाएंगे तो that would be angle of elevation. And now the angle of elevation of the top of antenna is 21.8 degree. Top of antenna, this is the top of the antenna. From the same point, angle of elevation of this point from the top of from that point on the ground is, let me make it, this is of 21.8 degree. 21.8 degree. Okay, so you can mention the name over here, B, C and A, okay, and this point is D. Now there are two triangles. You can see one triangle is ABC and another one is DBC, okay. And what is the question? Find the height of the house. We need to find out this portion, okay, this portion. We need to find out the height of the house. And a television antenna of 8 feet height. The height of the antenna is given over here, which is 8 feet. ठीक है, ये आपके पास 8 feet है. And now you will solve this problem from the figure. And now let me make the triangle. Okay, ये आप जो है यहाँ आपका एंटेना था. This is D point, this is B point and this is C point. Okay, और इससे ज़रा सा नीचे जो था वो आपका जो टॉप ऑफ द हाउस था वो था मौजूद यहाँ पे. तो आप यहाँ पर A लिखेंगे और इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिला देंगे. ओके, अब ये जो एक छोटी सी हाइट है, इट इज़ गिवन एज 8 feet. ओके, and you don't know what is the height of the house. You will find out the height of the house from here. Okay, ये आपको find out करना है. ये आपके पास unknown है, the base, ठीक है, यानी पॉइंट से लेकर जो आपका हाउस तक का जो डिस्टेंस है ये अननोन है. आई विल राइट इट लाइक x ओवर हियर, ठीक है. और अब आपके पास जो एंगल्स हैं, दिस एंगल इज 17 डिग्री एंड दिस एंगल इज 21.8 degree. Okay, 21.8 degree and this is 17 degree. By taking help from these two triangles we will be finding out the height of the house. अब ज़रा इसको देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे. पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC. ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर डिस्टेंस of point from house, of point B from house, that is BC equals x. Okay, height of the house, what is this height of house which we are going to find out is AC is equal to H is equal to question mark. We are going to give the name of this height as H. ठीक है, यहाँ हमने इसको H कह दिया. इसके बाद हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा वाला यूज करेंगे? जो हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम दिस पॉइंट. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हाउस इज 17 डिग्री. अच्छा जी, हाइट ऑफ एंटेना जो हमें गिवन है, व्हाट इज दिस? हाइट ऑफ एंटेना is equal to AD is equal to 8 feet. Okay,
एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, ये हमारा डाटा जो है वो बन गया है, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एंटेना is equal to 21.8 degree. Okay, now ट्राइंगल ABC, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। वन बाय वन हम दोनों ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर उनकी हेल्प से हम हाइट ऑफ द हाउस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लें ट्राइंगल ABC तो दैट वुड बी टेंजेंट थीटा, ओके, इज इक्वल टू, अगर हम ये वाली ट्राइंगल को यूज़ करें ABC, तो यहाँ आपके पास जो एंगल है वो 17 डिग्री है, ठीक है। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द हाउस विच इज़ H एंड द बेस विच इज़ अननोन इज X, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें मालूम नहीं हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन, यानी ये आपके पास आ जाएगा AC अपॉन BC which equals to, so now we will put the value of the angle here which is 17 degree, okay, is equal to AC is H and BC is X, okay. So that would be H upon X, and if we are going to find out the value of X, what it would be, that would be H upon tangent 17 degree, okay. Now from here you will find out the value of tangent 17, okay, and you will divide that value by 1 and that would be 3.271 multiplied by H, okay. This is your equation number 1 which you have found out from this triangle ABC. Now we will discuss triangle DBC, okay. From triangle DBC, okay, so what it would be, tangent, यानी अब हम जो ट्राइंगल यूज कर रहे हैं वो ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, ओके, DBC. Now your angle has been changed to 21.8 degree, okay, and your height is H plus 8, ठीक है। ये पूरी हाइट आ जाएगी तो ये आपके पास आ जाएगी H plus 8 इन केस ऑफ ट्राइंगल DBC, ओके। एंड आपका जो बेस है X है वो सेम रहेगा, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल DBC. नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर इट। 21.8 डिग्री equals CD upon BC, okay. Now we will put the values which are, अच्छा, अब यहाँ से अगर आप CD देखें तो what it would be, CD is, CD will be equal to DA plus AC, okay. तो ये जब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो अभी मैंने आपको बताया दैट वुड बी 8 प्लस H, ठीक है। तो यहाँ हम 8 प्लस H जो है वो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो CD की जगह अब मैं लिख देती हूँ आपके पास AD प्लस AC, ओके, अपॉन BC, and now I will put the values. What it would be, this is 8 plus H upon X, okay, and this is tangent of 21.8 degree. ये आपके पास आ गया है, ठीक है। और टेंजेंट ऑफ 21.8 डिग्री दैट वुड बी इक्वल टू 0.40 इज इक्वल टू 8 प्लस H अपॉन X आ गया है आपके पास। नाउ यू व्हाट विल यू डू, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ X फ्रॉम हियर टू दियर, ठीक है। यहाँ हम X की वैल्यू पुट कर देंगे तो व्हाट इट वुड बी 0.40, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 3.271 H इज इक्वल टू 8 प्लस H, ठीक है।
तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड दैट वुड बी 1.3084. 1.3084h is equal to 8 plus h, and by solving this we will be having the value of h is equal to 25.94 feet. ओके, इसको आप कैलकुलेशंस यहाँ से खुद से कीजिएगा. दिस इज द हाइट ऑफ द हाउस. तो ये जो आपके पास हाइट ऑफ द हाउस है, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है. And now we are going towards question number 10. And what is this? From an observation point, there is an observation point, the angle of depression of two boats. यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहाँ कहीं ऊपर मौजूद है, ठीक है. और देयर आर टू बोट्स. एक हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं. ओके, तो डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स, दीज टू आर द बोट्स. बोट को हम बी और सी का नाम दे देते हैं, और यहाँ हम आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से देखा जा रहा है उसे हम ए का नाम दे देते हैं, ठीक है. विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 and 45 डिग्री. ठीक है, तो फर्स्ट जो बोट है वो है आपकी 35 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दूसरी जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री. तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है बोट, फर्स्ट बोट का, और ये आपका सेकंड बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है. ओके, ये आपका है 30 डिग्री एंगल. ओके, और ये आपका है 45 डिग्री एंगल. ठीक है, तो ये आपका एंगल्स आ गए हैं. यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉप करेंगे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन वुड बी पैरेलल टू दिस लाइन. ठीक है, ये दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. और अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल, इसको भी ट्रांसवर्सल ले लूँ और ये वाली लाइन को भी ट्रांसवर्सल ले लूँ, विच द बोथ लाइंस आर कटिंग दीज टू पैरेलल लाइंस, तो यहाँ आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, और इसका ऑल्टरनेट 30 डिग्री एंगल जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका अगर आप ऑल्टरनेट एंगल निकालें तो दैट वुड बी द ऑल्टरनेट एंगल. तो ये एंगल भी जो है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा, एंड दिस 45 डिग्री एंगल अगर आप इसका ऑल्टरनेट एंगल लें तो दैट वुड बी द ऑल्टरनेट एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो ये आपका यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन जाएगा. ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स. वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. ओके, ये आपको जो है वो फाइंड आउट करना है डिस्टेंस. और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई. ये जो आपका जो लाइन है ये आपकी है, इसकी जो हाइट है वो है 4000 फीट. ओके, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पर आपका मौजूद है, ए जहाँ पर मौजूद है, तो वो अगर आप ग्राउंड से उसकी हाइट निकालें तो दैट इज 4000 फीट. ठीक है, तो ये हमने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन आपके पास दो ट्राइंगल्स जो हैं वो बन रही हैं. यहाँ डी पॉइंट दे देते हैं, ये परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ आपका बन रहा है. ठीक है, तो जो हाइट है और बेस है उसके दरम्यान में यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो बन रहा है. ठीक है, तो अब हम जो है वो दोनों फिगर, दो आपके पास ट्राइंगल्स आ गई हैं, दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करते हुए हम वैल्यू निकालेंगे दिस बी सी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फिगर पहले हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं डाटा बना लेते हैं. ठीक है, फ्रॉम द फिगर हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, height of observation point where it is A का डिस्टेंस D से, यानी ये हाइट जो है ये है आपके पास AD equals 4000 feet. ओके, एंड नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन बोट्स आपको गिवन है. डिस्टेंस बिटवीन बोट्स B एंड C आपको गिवन है, which is equal to BC. ठीक है, आई एम सॉरी ये गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बना देंगे इधर हम. एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट्स B and C, ऑफ पॉइंट्स B boat and C boat from point A
यानी ऑब्जर्वर से अगर आप इसको निकालेंगे तो ये कैसे बनता है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए एज द ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स अभी मैंने आपको बताया था, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर आप निकालेंगे तो आपके पास जो है वो एंगल्स बी जो निकलेगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल में, और आपके पास जो सी निकलेगा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हम दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ACD, ये वाली ट्राइंगल हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये वाली ट्राइंगल जो है जो हमारे पास मौजूद थी, पहले हम ACD को सॉल्व कर रहे हैं। ये है हमारे पास ACD को जब हम लेकर चलेंगे तो व्हाट इट वुड बी टेंजेंट, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, कीप इट इन योर माइंड। टेंजेंट 45 डिग्री हमने एंगल लिया है और हमारे पास आ जाएगा MAD, मेजर लाइन AD डिवाइडेड बाय मेजर लाइन CD, ओके। ये आ गया आपके पास। अब आप इसमें जब वैल्यूज डाल लेंगे तो दैट वुड बी 1 इज इक्वल टू 4000 अपॉन CD, ओके। आपके पास CD आ गया है और इसी के साथ ही CD की जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट वुड बी 4000 फीट, ओके। ये आपके पास CD की वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, CD की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। वेयर इट इज CD, ये आपके पास CD था जो आपके पास आ गया है अभी 4000 फीट, ओके। ट्राइंगल ABD वी आर गोइंग टू कंसिडर, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD में जो आपका टेंजेंट 30 डिग्री है दैट वुड बी इक्वल टू AD अपॉन BD, ओके। AD मेजर लाइन AD एंड मेजर लाइन BD, ओके। तो ये आपके पास आ गया है एंड नाउ यू विल पुट द वैल्यूज। टेंजेंट 30 डिग्री वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, ओके, एंड 4000 AD इज द हाइट ऑफ दैट ऑब्जर्वर, तो ये 4000 आ गई है। BD जो आपके पास है दैट वुड बी इक्वल टू BC प्लस CD, ओके। CD ये कहाँ से आया आपके पास, ये देखिएगा आप कि अगर आप ये वाली लाइन इसका जो आपकी जो डिस्टेंस है, अगर आप ये कंप्लीट डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू BC प्लस CD, ओके। तो यही चीज़ जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये आपके पास BC प्लस CD आ गया है। नाउ विल यू डू, जस्ट पुट द वैल्यूज 1 अपॉन √3 एंड दैट इज इक्वल टू, हमें वैल्यू जो है वो BC की तो पता नहीं है, सो आई विल राइट हियर BC एज इट इज एंड व्हाट इज दिस CD विच इज 4000 फीट, ये जो अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, ठीक है। इसमें आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दैट वुड बी BC प्लस 4000 is equal to 4000 multiplied by √3, okay, and when you solve it that would be your BC would be equal to 2928। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे by using your calculator, ठीक है। this is 20 feet। तो ये आपके पास जो है ये BC की वैल्यू आ गई है which is we were going to find out, okay। यही हमें वैल्यू मालूम करनी थी BC की जो हमने ये फाइंड आउट कर ली है, दैट इज योर आंसर। यानी एक दफ़ा इसको रिकैप करते हैं। देयर वर 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। एक ट्राइंगल आपकी बनी थी ACD, दूसरी ट्राइंगल आपकी बनी थी ABD, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज 2 ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स को हमने सॉल्व किया टेंजेंट थीटा पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया इसलिए कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं था, सिर्फ हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर वाला जो था वो मामला चल रहा था, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट थीटा हमने दोनों पे अप्लाई किया, उससे हमारे पास जो थी जो वैल्यूज़ हमें CD की वैल्यू हमने निकाली
एक ट्राइंगल ACD यूज़ करके CD की वैल्यू निकाल ली है, और जब दूसरी ट्राइंगल हमने ABD सॉल्व की तो जहाँ पर CD की वैल्यू आई वहाँ हमने ये वाली वैल्यू जो थी वो पुट कर दी है, एंड देन वी हैव फाउंड आवर आंसर विच इज़ BC इज इक्वल टू 2928. Now question number 11, and let's read this question. There are two ships which are in line with the base of a vertical cliff. एक चट्टान है, here it is, this is a cliff, ठीक है, which are in line with the base of, ये जो बेस है इस चट्टान की उसके साथ ये दो बोट्स आपको नजर आ रही हैं, ओके, are 120 meters apart, दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है this is 120 meters, ठीक है. The angles of depression from the top of the cliff टू द शिप, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो हम इससे पहले कर आ रहे हैं, ठीक है. तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट बोट के लिए 30 डिग्री है, सेकंड बोट के लिए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है. लाइकवाइज व्हाट विल यू डू, 30 डिग्री आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल के तौर पे, और 45 डिग्री आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल के तौर पे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल. अभी हम यहाँ मजीद फिगर बना के आपको समझाते हैं. अच्छा जी, 30 and 45 डिग्री एज शोन इन द डायग्राम. कैलकुलेट द डिस्टेंस BC, कैलकुलेट द हाइट CD, ठीक है. एक तो आपको BC कैलकुलेट करना है. अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, C यहाँ नहीं आएगा, यहाँ इन्होंने गलत बनाया, दैट वुड बी ओवर हियर. ये लेट मी टेक ब्लैक कलर, लेट मी टेक ब्लैक, नॉट द ब्लैक, रेड कलर, ओके, और वाइट वुड बी बेटर. तो यहाँ ये आपके पास जो है वो C पॉइंट नज़र आ रहा है, ओके. दिस इज़ B पॉइंट एंड दिस इज़ A पॉइंट एंड दिस इज़ D पॉइंट विच इज़ द ऑब्जर्वर, ठीक है. चट्टान के ऊपर से जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है. तो ये आपके पास आ गए हैं पॉइंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू मेक टू ट्राइंगल्स, ओके. देयर वुड बी टू ट्राइंगल्स. हम इसको दोबारा से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. This is here, so this is A, this is C, and this is D. ADC is a triangle and there is a point the next boat. ये आपके पास यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है. तो यहाँ आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, देयर वर टू एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45. मैंने आपको बताया कि उसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ये 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है. ऑल्टरनेट एंगल है ये. This angle and this angle would be the alternate angles, and this angle 45 degree and this angle would be the alternate angle, because two parallel lines are here, and BD is the BD and AD are the transversal which are cutting these two. यहाँ मैं अगर आप चाहें तो यहाँ मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है. तो यहाँ आपका जो था 30 इधर से इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है. दिस इज 30 और दिस इज 45. 45 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. दिस इज 45 डिग्री. तो देर आर टू ट्राइंगल्स. अब हमें जो मालूम करना है, वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट, आपको फर्स्ट A में जो है वो आपको BC मालूम करना है, और सेकंड जो है वो आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो दिस इज, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस ऑब्जर्वर, ठीक है. मतलब हाइट ऑफ द क्लिफ जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है. अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फिगर, ठीक है. वॉट एवर इज गिवन और अननोन, फर्स्ट वी विल mention all that. Height of the cliff, height of cliff, okay. So this is height of cliff is CD. we are going to find out. H is equal to question mark. इसको हमने H का नाम दे दिया, ठीक है. This is H. and distance is equal to BC, यानी distance in between this portion, ये आपके पास BC है जो आपको फाइंड आउट करना है. इन्होंने इसको X का नाम दे दिया है, तो X इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है. अब हमने डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स लिखना है, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास आएगा AB,
इज इक्वल टू 120 मीटर्स। ठीक है, ये आपका 120 मीटर्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120 मीटर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट डी, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले हम ले लेंगे फ्रॉम पॉइंट डी टू फर्स्ट बोर्ड ए एंड सेकेंड बोर्ड बी। ठीक है, दोनों से जो है वो कितना कितना है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, और यही जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज हो गया है। दीज आर एंगल ऑफ एलिवेशंस। ठीक है। अच्छा जी, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर आप एंगल ए लिख रहे हैं तो दैट इज 30 डिग्री एंड एंगल बी, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व ट्राइंगल BCD। ओके, ट्राइंगल BCD and then triangle ACD. Okay, so here triangle BCD, tangent 45 degree. Okay, triangle BCD is here. As you can see that this is triangle BCD. तो हम BCD के लिए tangent 45 degree is equal to CD, major line BC equals h upon x, and tangent 45 degree is 1, so your x is equal to h. Okay, ये आपके पास जो है वो ट्राइंगल BCD से आ गया है। नाउ वी विल यूज ट्राइंगल ACD एंड व्हाट इट वुड बी टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा CD अपॉन AC. Okay, and that would be equal to 1 upon under root 3, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है ये, और यहाँ आपके पास आ जाएगा h अपॉन AB प्लस BC. Where does it come from? AB plus BC. This is here AB plus BC. ठीक है, जब हम ये वाली कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ADC, ओके, ACD, तो यहाँ पर आपके पास जो बेस होगी वो AB और BC को प्लस करके आएगी। ठीक है, as you can see here, तो that would be 1 upon under root 3 equals h upon what is this 120. The value of AB is 120 plus what is this BC. आपके पास जो BC है वो है x. ओके, एंड what will you do? अब आप इसकी जगह जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आपने x जो निकाला था वो h के बराबर था, तो आई विल पुट h ओवर हियर इंस्टेड ऑफ x, तो ये आपके पास बन जाएगा h अपॉन 120 प्लस h। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। नाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दैट वुड बी अंडर रूट 3h इज इक्वल टू 120 प्लस h। ठीक है, और इसके बाद अंडर रूट 3h माइनस h इज इक्वल टू 120। ठीक है, यहाँ से आप h को कॉमन ले लेंगे तो दैट वुड बी अंडर रूट 3 माइनस 1h इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस that would be 0 point, you will use your calculator, 321 h is equal to 120 डिग्री, और h की वैल्यू निकालने के लिए 120 अपॉन 0.7321 and your h would be equal to 163.91 meters. तो ये आपके पास h की वैल्यू आ गई है, एंड एज यू नो दैट आपने जो यहाँ निकाला था देख लेते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू h, यानी ये वाला जो साइड था और आपका जो हाइट थी दैट वाज सेम, ये साइड और ये साइड जो थी x वो इस ट्राइंगल की सेम थी। ठीक है, तो
तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू h की आई है वही वैल्यू आपकी x की भी आएगी. सो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 163.91 मीटर्स. ओके, यानी यहाँ जो वैल्यू आपके पास आई है ये हाइट आ गई है और ये आपके पास बेस ऑफ दैट ट्राइंगल आ गया, जो कि दोनों सेम थे. यहाँ जब आपने इसको सॉल्व किया था तो आपका x और h जो था वो सेम आया था. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Okay, and suppose that we are standing on a bridge 30 feet above a river. ये रिवर है आपके पास, ठीक है. इसके ऊपर 30 मीटर्स अबव ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, हम बैठे हुए हैं, ठीक है. अच्छा, ये 30 फीट है, 30 मीटर्स इट्स रिटन ओवर हियर, ठीक है. यहाँ इनसे कुछ गड़बड़ हुई है, इसको फीट कर देते हैं, ठीक है. 30 फीट above a river watching a log. ये एक लॉग को यहाँ पर देख रहे हैं पानी के ऊपर तैरता हुआ, ठीक है. which is piece of wood floating towards us. ये हमारी तरफ जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, इधर की तरफ ये फ्लोट कर रहा है. if the angle with the horizontal to the front of the log, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहे हैं ये यहाँ मौजूद है, ठीक है, जो है 16.7 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी आपका जो साइट है, लाइन ऑफ साइट है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से अगर ऑब्जर्वर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये इससे नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है. लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है. ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी, बोथ और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. और जो आपका पीस, इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग इज 16.7 डिग्री, विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग इज 14 डिग्री. यहाँ ये आपके साथ जो है ये 14 डिग्री बना रहा है बैक के साथ, ये बैक है. यहाँ जो लाइन है ये आपके साथ जो है बैक के साथ लाइन आ रही है, ठीक है, और ये 14 डिग्री बना रही है, और जो फ्रंट के साथ है वो 16.7 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है. हाउ लॉन्ग इज द लॉग, हमें ये इसका जो साइज ऑफ द लॉग है, जो लेंथ ऑफ द लॉग है, ये हमें मालूम करना है. नॉट द साइज, लेंथ ऑफ द लॉग, ये हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो पहले तो हम इसकी फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. देयर आर 2 ट्राइंगल्स, ठीक है. एक ट्राइंगल आपकी जो बन रही है, दिस इज लाइक दिस, ये आपका जो है फ्रंट ऑफ द लॉग है, ठीक है. ये पॉइंट जो है वो आपका फ्रंट ऑफ द लॉग है, इसको मैंने B कह दिया है, इसको मैंने C कह दिया है, और ये यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वर मौजूद है, ठीक है, इसको O कह देते हैं, ठीक है. और जो बैक ऑफ द लॉग है, ठीक है, बैक ऑफ द लॉग वो यहाँ है पॉइंट, इसको हम यहाँ से एंगल ले लेते हैं, ठीक है. ये आपका बैक ऑफ द लॉग है विच इज पॉइंट A. ओके, ये आपका लॉग है. यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. दिस इज द लॉग, ओके. हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन. अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते हैं. ये आपका बैक ऑफ द लॉग एंगल ऑफ डिप्रेशन है विच इज 14 डिग्री, और दिस इज फ्रंट ऑफ द लॉग एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दिस इज 16.7 डिग्री. ओके, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है. तो अगर हम 16.7 लें तो वो ये वाला आपका जो एंगल है वो यहाँ चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा 16.7. सो दिस एंगल वुड बी 14 डिग्री. ओके, ये आपका 14 डिग्री एंगल बन गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. लाइन को बिल्कुल सही कंसिडर कीजिएगा, कौन सा एंगल किधर जाता है, ठीक है जी. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ C आ गया, ये आपका जो है वो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका आ गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फिगर, वॉट एवर इज गिवन. फर्स्ट वी विल राइट फ्रॉम द फिगर. ओके, तो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट लिख लेंगे हम. तो ये आपका आ गया है OC इज इक्वल टू 30 मीटर्स. ये आपकी जो है लेंथ, ये 30 मीटर्स है. ओके, ये जो आपकी हाइट है, नॉट द लेंथ, 30 मीटर्स आपकी इसकी जो है वो हाइट है, ठीक है. एंड लेंथ ऑफ लॉग, अगर हम लेंथ निकालेंगे तो दैट इज AB. ओके, और इसको हमने ले लिया है यहाँ पर X, तो ये हमारे पास आ जाएगा X. ओके, जो कि हमें फाइंड आउट करना है.
अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज हो गया है, तो आपका जो एंगल बी जो होगा वो इक्वल टू 16.7 हो जाएगा डिग्री, और जो आपका एंगल ए होगा ये आपका हो जाएगा 14 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास जो है ये दो एंगल्स जो है वो आपके पास आ गए हैं। अब हम ट्राइंगल OBC पहले कंसिडर करेंगे। ओके, कंसिडर दिस इज OBC, ये आपकी एक ट्राइंगल आ गई है, फर्स्ट ट्राइंगल जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास हम टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए कि बेस और आपका हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान बात हो रही है, तो दैट वुड बी इक्वल टू टेंजेंट 16.7 डिग्री इज इक्वल टू OC अपॉन BC। ओके, OC अपॉन BC इसके दरमियान में आ जाएगा। तो आपके पास जो है वो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि टेंजेंट 16.7 डिग्री कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, और आपके पास ये 30 था जो हाइट थी, और नीचे आपके पास आ जाएगा BC एज इट इज, एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC। ओके, तो जब BC की यानी ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गई है 100 मीटर्स। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास BC की आ गई है। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर ट्राइंगल OAC, where it is OAC, this is here OAC triangle। ठीक है, दूसरी वाली ट्राइंगल ले ली है OAC। अब यहाँ आपके पास जो टेंजेंट आएगा दैट इज 14 ऑफ डिग्री, और OC अपॉन AC। ओके, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0.249 इज इक्वल टू 30। OC की वैल्यू आपके पास क्या है, OC आपने अभी देखा कि हमने इसको क्या लिखा हुआ था, 30 था, 30 मीटर्स था, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। और आपके पास जो AC है, योर AC, दिस इज, नाउ वी आर गोइंग टू टेक बेस एज AC। तो AC अगर आप लिखना चाहें तो दैट वुड बी AB प्लस BC। ओके, तो यहाँ हम लिख लेंगे AB प्लस BC। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 30 अपॉन AB प्लस BC। अगर हम यहाँ लें तो हमारे पास BC की वैल्यू जो है वो हमने 100 कैलकुलेट की है, एंड AB वुड बी एज इट इज़ विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, तो 49 व्हेन वी विल सॉल्व इट दैट वुड बी, यहाँ AB की जगह अगर मैं x रख दूँ तो दैट वुड बी रादर बेटर। ओके, यहाँ मैं AB की जगह के ऊपर जो है वो वैल्यू लिख देती हूँ जिससे हम शो कर रहे हैं, x हम यहाँ लिख देते हैं, x से शो किया है हमने, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो x का जो आंसर आएगा, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 20.482। ओके, तो ये आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए मीटर्स। तो ये जो आपके पास जो लेंथ ऑफ द लॉग थी, जो आपने x आपने फाइंड आउट करना था, वो आपकी वैल्यू ये आ गई है। सो हाउ विल यू गिव योर आंसर? सो द लेंथ ऑफ लॉग इज 20.482 मीटर्स। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।